السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سویرا خالد اور میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دن بدن بڑھتی ہوئی اسموک کی۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 397 ریکارڈ کی گئی۔ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 477 ریکارڈ۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دن بدن اسموک بڑھتی جا رہی ہے اور شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کسی کو آنکھوں میں پانی آنے کی بیماری ہے تو کسی کا گلا خراب ہے، کوئی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہا ہے تو کسی کی کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی۔ اسموک کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے حکومت پنجاب کی جانب سے مصنوعی بارش بھی کی گئی، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج نہ مل سکے اور آج پھر لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ اسموک کے حوالے سے آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 397 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسموک کی تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے بات کریں گے محمد علی سے، جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی، لاہور اسموک کے اعتبار سے آج پھر پہلے نمبر پہ اور تقریباً 397 کے قریب اوسطن شرح ریکارڈ کی گئی، لیکن کینٹ کے علاقے میں یہ 477 تک پہنچ گئی اور یقیناً یہ 500 سے بھی ابو کر چکی کچھ گھنٹوں میں۔ اور جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 427 کم از کم درجہ حرارت 8 ڈگری جانے کا امکان ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 21 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر لاہور سمیت گرد و نواح کے اندر کہیں بھی بارش نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور فیکٹریوں کا دھواں اور بالخصوص جو اینٹوں کے بھٹے ہیں جو کام کر رہے ہیں لاہور کے اطراف کے تمام جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ان علاقوں میں جو بھٹے چلائے جا رہے ہیں، جن میں اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، ان کا دھواں بھی اسموک کی اضافہ کر رہا ہے اسموک کے اندر۔ دوسری جانب لاہور کے اندر کیونکہ فیکٹریاں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح بکر منڈی سائڈ اور وہ فیکٹریاں بھی ابھی تک بند نہیں کی گئی۔ پچھلے دنوں حکومت کی جانب سے سختی کی گئی تھی، اسکول بھی بند کیے گئے، ماسک کے استعمال پہ بھی پابندی لگائی گئی، لیکن آج پھر اسی طرح لاہور اسموک میں ایک بار پھر لپٹا ہوا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ نہیں ہے، ابھی تک بارش لاہور میں ہوئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی نزلہ زکام بخار اس میں بھی شدت میں اضافہ آ رہا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو ماسک کا استعمال کریں، بالخصوص ہارٹ کے پیشنٹ، دمے کے پیشنٹ، جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ بہت شدت سے، ان کے لیے یہ اسموک زہر ہے اور ان کی صحت بھی کو نقصان پہنچائے گا اس سے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ صبح و شام کے اوقات میں کوشش کی جائے کہ جن کی عمر 50 سال سے زائد ہے، 60 سال سے اب آپ جتنے بھی بزرگ ہیں، وہ ذرا احتیاط کریں کھلی جگہ پہ نکلنے سے۔ اور لاہور کی بکر منڈی کی طرف، جتنے بھی بند روڈ کی طرف کی جتنی بھی چربی جلانے والے کارخانے وہ ابھی تک بند نہیں ہوئے، اس پہ ضلعی حکومت کو چاہیے اس پہ بھی کارروائی کی جائے۔ رنگ روڈ کے اطراف میں بہت سارے ایسے کارخانے جس میں ہڈی کو پیسا جاتا ہے، چربی کو جلایا جاتا ہے، یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر میں جو اسموگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ محکمہ موسمیات نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا کہ اگر بارش ہوتی ہے اس صورت کے اندر اسموگ کم ہوگی۔ پنجاب حکومت نے ایک تجربہ کیا تھا جو مصنوعی بارش کا، وہ کچھ وقت کے لیے کیا گیا، کچھ بہتری آئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اسموگ کی شدت کئی دن سے بڑھی ہوئی اور مزید کہا جا رہا ہے اگلے کئی دن تک یہی صورتحال لاہور میں رہے گی۔ گرد و نواح کی اگر بات کی جائے تو لاہور، سیالکوٹ، اسی طرح گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، یہ علاقے، فیصل آباد، ملتان سائڈ، جنوبی پنجاب کے تمام جتنے علاقے ہیں، صبح کے اوقات میں بھی اسموک زیادہ پڑ رہی ہے، دھند بھی پڑ رہی ہے ساتھ، اور اس سے سانس لینے میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے چند روز تک لاہور میں کسی بھی صورت بارش کا کوئی امکان نہیں، اگر بارش ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر موسم بہتر ہوگا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ محمد علی۔ نگراں پنجاب حکومت نے شہر میں 3 فلائی اوورز اور 4 انڈر پاسز مکمل کیے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں مبینہ نااہلی کا بڑا انکشاف سامنے آیا۔ ایل ڈی اے کے پاس میگا پروجیکٹ کی چیکنگ کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں۔ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ نے پیچ ورک کی کبھی مٹیریل ٹیسٹنگ ہی نہیں کروائی۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے اس بارے۔
जनवरी 2023 से पंजाब में बरसरे इक़्तिदार निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से खास तौर पर शहर लाहौर में मेगा तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए और फिर उसके बाद उनको मुकम्मल भी किया गया, जिसमें अभी तक निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 फ्लाईओवर और 4 अंडरपासेस मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन इन तरक्याती मंसूबों की तमीर में इदारों की मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ हुआ है कि LDA की तरफ से ये जो अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स मुकम्मल किए गए, इनमें इस्तेमाल होने वाला जो तामीराती मटीरियल है उसकी चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जो फ्लाईओवर तमीर किए गए, अंडरपासेस बनाए गए, सड़कों के पैच वर्क और कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के लिए टेस्टिंग लैब ही मौजूद नहीं है। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने पैच वर्क की कभी मटेरियल टेस्टिंग ही नहीं करवाई। इस तरह मटेरियल टेस्टिंग ना होने के सबब सड़कों के पैच वर्क में नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हुआ है। यही वजह है कि हाल ही में बनने वाले ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो सड़कें हैं, नाकस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब इनके उखड़ने के और बैठने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। जो सड़कों पर कारपेटिंग की गई उससे सरकारी खजाने से 1 अरब रुपए से ज्यादा के फंड खर्च किए गए, मगर जब सड़कों की कारपेटिंग की जा रही थी तो ना ही थर्ड पार्टी की तरफ से इसके मटेरियल को टेस्ट किया गया और ना ही इन मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के दौरान साइट पर कोई मटेरियल टेस्टिंग लैब बनाई गई। इस तरह जो इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके ऊपर ये सवालिया निशान पैदा हो चुका है। LDA ने 1 साल कबल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए लैब बनाने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक इसका क़याम अमल में नहीं लाया गया। ठीक है, ज़ैन अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रोडा का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम दारा सिटी के दफातर सील और बोर्ड में स्मार कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर एजाज अहमद का कहना था कि रोडा सनती फ़रोग का कहा है, गैर कानूनी तामीरात कायम नहीं होने देंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, उनसे जानेंगे। जी बताइए ज़ैन। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आज भी रूडा के ऑपरेशन विंग की जानिब से इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि दफातर सील कर दिए गए। ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत इन्फोर्समेंट के अफसरान एजाज अहमद और जाजिर भट्टू ने की। ऑपरेशन में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम दारा सिटी के दफातर सील और बोर्ड्स को मिसमार कर दिया गया, जबकि दौरान ऑपरेशन एंटी स्मोक मुहिम के हवाले से स्टील फर्नेस मिल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। रूडा इंतजामिया का कहना है कि रूडा सनती फरोग का ख़्वाह है, लेकिन गैर कानूनी तामीरात को कायम नहीं होने देंगे। ठीक है, ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 16 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 282 रुपये 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 284 रुपये 50 पैसे रहा। रुपए के हवाले से मुस्तहकम रेट देख रहे हैं, जबकि डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। डॉलर मज़ीद 16 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर रेट दिन ब दिन गिर रहा है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 282 रुपये 37 पैसे रहा, जबकि ओपन मार्केट में इस रेट के हवाले से आपको बताएं तो वो थोड़ा ज़्यादा रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तकमील से आवाम की आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात और सेक्रेटरी औकाफ को मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मनसूबे की जल्द तकमील के लिए हिदायत जारी की। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का 60% काम मुकम्मल 31 जनवरी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लेने अड्डा प्लाट ड्राइविड पहुंचे। मोहसिन नकवी ने रूट पर जारी कामों, ज़ेरे तामीर पुलों का मुशाहिदा किया और जल्द तकमील के लिए हिदायत दी। FWO के कर्नल समी ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त बारे आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था, धुंध की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। हम टाइम लाइन से बहुत आगे जा रहे हैं। 2 साल का प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। FWO जहाँ कर रही है, हमें उन्होंने कहीं पे भी नाउम्मीद नहीं किया है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट पे भी ये लोग हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और दे आर वेरी श्योर कि जनवरी के महीने में गाड़ियाँ चलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। हम टाइम लाइन से बहुत पहले जा रहे हैं। ये अभी अब जाहिद साहब वही बात कर रहे थे कि अगर नॉर्मल दिनों में होता ये 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट था, जो हम 5-6 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।
निगरान वज़ीर-ए-आला ने मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आइश और तोसीई मंसूबे का दौरा भी किया और प्रोजेक्ट पर जारी कामों का मुशाहिदा किया। दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मखसूस करने की हिदायत की। मज़ार के मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का कहना था, मज़ार का रास्ता कुशादा होने से ज़ायरीन को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। मज़ार बीबी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल हो चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मज़ार को 31 दिसंबर से पहले ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने शाहदरा चौक, कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। मज़ार बीबी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल। मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो, आराइश और तोसी मंसूबे का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत। मज़ार के मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शाहदरा चौक और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने सगियां तबाबू साबू और न्यासी चौक तक सगियां दोनों पैकेजेस का तफसीली दौरा किया। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 42.5 और पैकेज 2 का 25.5% काम मुकम्मल हो चुका। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का दोनों पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साइट पर इजलास भी हुआ। कमिश्नर लाहौर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गए। PIC के तीनों फ्लोर्स का दौरा किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स को डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार होशियार फिर से क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना है कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम इंतहाई मौसर रही है, इससे मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत, हेलमेट पहनने की करें गवारा जहमत। CTO लाहौर अमारा अतर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एक बार फिर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। तकरीबन 380 के करीब जो हैं हमारे सिटीजन्स जो लाहौर के हैं जिनकी डेथ्स हो गई, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो रैश ड्राइविंग है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हेलमेट का ना पहनना है। और सड़क पे जब आप आते हैं और आप नॉन सीरियस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आप अपने राइट और लेफ़्ट देखते नहीं हैं और आपने हेलमेट नहीं पहनना होता, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 380 जानें हैं ये हम बचा सकते थे। इसके अलावा बेशुमार तादाद हमारी ऐसी है जो इंजर हुई है। शहरियों ने भी हेलमेट पहनने को जरूरी करार दिया। CTO अमारा अतर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगाही के लिए शहरियों में हेलमेट और पंफलेट भी तकसीम किए। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बयानात देना कोई नई बात नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूल कर इत्तेहादी बन जाते हैं। इलेक्शन का कल्चर होता है एक दूसरे के खिलाफ बयानात दें, लोग इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौम में इत्तेफाक राय हो। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, कोई ऐसे दिल को लगाने वाली बात नहीं है। ये सारी दुनिया में दिए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दिए जाते। ये इलेक्शन का कल्चर होता है, इलेक्शन गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं, इत्तेहादी बन जाते हैं, मिलकर हुकूमतें भी करते हैं, तो ये बातें बिल्कुल नहीं लगाई। देखिए, मैं 2/3 की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है ना वो मेजॉरिटी पार्टी होगी कौमी असम्बली। ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें नेशनल कंसेंसस का जो है आंसर ज़रूर होना चाहिए, ताकि हीलिंग हो, ताकि ज़ख्मों पे मरहम जो है ना वो रखा जा सके। जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है हर किस्म की। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर मरियम औरंगज़ेब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। जो 3 दिन से रोना रो रहे हैं उनके भी कागजात अंदर जमा है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। अभी वो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पार्टीज़ के साथ वो बुला रहे हैं, तो जो उसमें है उन सब के हो गए। मेरे से पहले जो लेवल प्लेइंग फील्ड की मुझे तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज़्यादा कागजात जमा हुए हैं।
नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ की कागजात बगैर एतराज़ के मंजूर किए गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ NA-130 से भी कामयाब होंगे। नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं, उनको बगैर एतराज़ के जो है मंजूर किया गया है और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बने। मौसम सरमा में भी बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी का सामना। धुंध के बायस तरसीली निज़ाम भी मुतासर। मौसम सरमा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग होने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस तकनीकी खराबी की भरमार। पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी हुई। महंगी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स भी बंद हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 11,500 मेगावाट से ज़ायद है। बिजली का शॉर्टफॉल 3,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। लेस्को की बिजली की तलब 2200 मेगावाट से ज़ायद, जबकि सप्लाई 1800 मेगावाट है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 4 से 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। साल 2023 अवाम के लिए शदीद महंगाई का साल रहा। अशिया खुरनोश के दाम सारा साल अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। घी की कीमतों में कदर रिलीफ मिला, लेकिन कुव्वत ख़रीद सिकुड़ने से वो रिलीफ भी ज़्यादा मौसर साबित न हो सका। साल 2023 शहरियों के लिए कोई खुशखबरी न ला सका। हर चीज दुगनी, गरीब के लिए दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। जनवरी 2023 में दाल चना 210 रुपए थी, जो महंगी होकर 250 रुपए किलो हो गई। दाल माश 400 रुपए किलो से बढ़कर दिसंबर तक 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। 260 रुपए किलो वाली दाल मसूर भी 390 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी जनवरी में 110 रुपए किलो थी, जो 220 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। ताहम क्रशिंग सीजन और हुकूमती मुदाखलत की वजह से अब चीनी 145 रुपए किलो की सतह पर बिक रही है। घी और कुकिंग ऑयल सस्ते तो हुए, लेकिन महंगाई ने खरीदारों की कुव्वत खरीद सुकेड़ दी, जिससे ये रिलीफ भी ज्यादा मुअस्सर साबित न हो सका। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए किलो से साल के आखिर तक सस्ता होकर 480 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 630 रुपए से सस्ता होकर 520 रुपए फी लीटर हो चुका है। अवाम का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की शरह बढ़ती है। बच्चों के लिए दाल रोटी तक कमाना महाल हो चुका है। हर चीज महंगी हुई है। दाल महंगी है, दालें सारी महंगी हैं, चीनी महंगी है, घी सिर्फ घी और ऑयल की कीमतें सस्ती हुई हैं, बाकी तो सब कुछ महंगा है। तो आगे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती कोई सस्ती हो। महंगाई इस कदर हुई है कि ये 2023 का जो है ना, इसने तो बिल्कुल ही मार डाला, अवाम को पीस के रख दिया है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। इतनी महंगाई। परचून दुकानदार भी बढ़ती कीमतों और लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से परेशान हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका है। हर गुजरता साल कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। देखना यह है कि आने वाला साल अवाम के लिए कीमतों में कोई नया रिलीफ लेके आता है या महंगाई मामूल के मुताबिक ही बढ़ती रहेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आइंदा साल 2024 में कितनी सरकारी छुट्टियां होंगी? हुकूमत ने आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साल 2024 में 39 छुट्टियां होंगी। कबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 आम तातीलात, 23 इख्तियारी छुट्टियां होंगी। 5 फरवरी 2024 को योम कश्मीर की आम तातील होगी। 23 मार्च को योम पाकिस्तान, 1 मई को योम मजदूर की छुट्टी होगी। 10 से 12 अप्रैल ईद उल फितर, 17 से 19 जून को ईद उल अजहा की 3 छुट्टियां दी जाएंगी। 16 और 17 जुलाई को 9वीं 10वीं मुहर्रम, 14 अगस्त को योम आज़ादी, 16 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील होगी। 9 नवंबर को योम इकबाल, 25 दिसंबर को योम कायदे आज़म और क्रिसमस की आम तातील मिलेगी। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि साल 2024 के लिए इस्लामी छुट्टियां मुतवक्के तारीख के हिसाब से तय की गयी। चांद की रोयत के हिसाब से छुट्टियों का अलग नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक साल 2024 में 1 जनवरी, 11 मार्च, 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी।
साल तो बदलते रहे मगर 2023 में भी लाहौर के तालीमी इदारों के हालात ना बदले। रवां बरस भी कोई नया स्कूल ना बन सका। 2023 के दौरान पंजाब में महकमा स्कूल एजुकेशन ने कितने नए मंसूबे शुरू किए और ये साल असातिज़ा के लिए कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल की आमद है, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन के हालात जूं के तू हैं। रवां बरस निगरान हुकूमत में भी लाहौर के स्कूलों के हालात ना बदले। आबादी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र 2023 में भी कोई नया स्कूल तामीर ना हो सका। लाहौर के स्कूलों को सहूलियात की कमी का भी सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के दौरों से एक दो स्कूलों के हालात में बेहतरी आई, ताहम मजमूई सूरत हाल अच्छी नहीं। पंजाब भर की बात की जाए तो 48,000 स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। 25% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरीज की सहूलत मौजूद नहीं। 14% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर लैब से महरूम हैं। असातिज़ा 2023 में भी अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बने रहे। लीव इनकैशमेंट के मामले पर स्कूलों में 20 रोज तक तालीमी बाइकॉट रहा। असातिज़ा के नुमाइंदों का कहना है कि तालीम हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। निगरान हुकूमत ने लाहौर समेत हर जिले के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल्स का दर्जा देकर डायरेक्ट DCs के मातहत कर दिया है। तहम इस फैसले के नताइज सालाना इम्तहानात के नताइज पर ही मुनहसर हैं। सवाल ये नहीं कि इस साल भी नए स्कूल नहीं खोले गए, बल्कि तशवीशनाक अमर ये है कि पहले से मौजूद स्कूल भी तवज्जो के मुंतज़र हैं। मुकाम अफसोस ये भी है कि पंजाब में यके बाद दीगरे 4 हुकूमतें आईं मगर किसी ने भी तालीमी अदारों पर तवज्जो ना दी। कैमरामैन हाफिज़ मुबीन के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़।